limit of ratio of its n plus 1th term to the nth term as n tend to infinity is k. And if this k is less than 1, then the series converges. If k is greater than 1, then the series diverges. And if this limit comes out to be 1, in that case, we can't conclude whether the given series is convergent or divergent. So this test fails. That means हमें कोई और method use करना पड़ेगा to determine whether the series is convergent or divergent in case the limit comes out to be 1. What is ratio test? Is that clear to everyone? What is the condition and what is the conclusion? Is this clear to everyone? Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We discussed this one first question where this series is given. Is this question clear to you or shall I repeat it again? क्लियर मैम. मैम एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज. Okay. रिपीट कर दो. कोई नहीं, मैं रिपीट कर देती हूँ. पर टेस्ट क्या? What is the ratio test? That is clear to everyone, ना? Yes, ma'am. Now consider this series which is given by 1 plus 2 square upon 2 factorial plus 3 square upon 3 factorial and so on. The first term 1 can be written as 1 square upon 1 factorial. Yes or no? I can write 1 as 1 square upon 1 factorial. Yes, ma'am. So in the first term you have 1 square upon 1 factorial. In the second term you have 2 square upon 2 factorial, 3 square upon 3 factorial. In third term, if we observe this pattern, then the nth term of this series should be n square upon n factorial. So nth term un क्या है? N square upon n factorial. N plus 1th term will be obtained by replacing n by n plus 1. After replacing n by n plus 1, we will get un plus 1 is equal to n plus 1 का whole square upon में n plus 1 factorial. Now we will apply ratio test. For applying ratio test, we will take the ratio of n plus 1th term to the nth term and then we'll compute limit n tending to infinity. n plus 1th term की वैल्यू यहाँ पुट की है and nth term की डिनोमिनेटर में. डिनोमिनेटर की रेसिप्रोकल से हमने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया. Then in the denominator n plus 1 factorial can be written as n plus 1 into n factorial. This n factorial will cancel with the n factorial in the numerator. Okay. Now look over here. In the numerator you have n plus 1 ka whole square. In the denominator you have n plus 1 ki power 1. We can cancel the 1 power to get this expression equal to n plus 1. So numerator में आपके पास क्या है? n plus 1 and denominator में यहाँ पे आपके पास n square है. So the resulting expression will be n plus 1 upon n square. After this term by term हमने separate किया है. The first term will be n upon n square which is 1 by n. The second term will be 1 by n square. Now limit n tending to infinity we will compute. As n takes very large number, 1 by n will approach to 0. Similarly, 1 by n square will also approach to 0. So the limit will be 0 plus 0 which is 1. 0 which is less than 1. And you know that if the limit comes out to be less than 1 then your series is convergent. So here this given series is convergent. Is this question clear to everyone now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now next question is, you are considered this series x upon 1 plus x square upon 1 plus x square plus x cube upon 1 plus x cube and so on. If you observe the first term, numerator observe करते हैं हम पहले. First term जो है उसकी power x की power is 1. In the second term it's x की power 2. In the third term it will be x की power cube. So in the nth term it will be x की power n. Now observe the denominator. In each of the denominator, you first have 1 plus 1 plus 1 plus. So we have kept 1 plus as it is. Then x की power 1, x की power 2, x की power 3. So in the nth term, it will be x की power n. So for the given series, the nth term is given by x की power n upon 1 plus x की power n. Is the nth term clear to everyone? Yes, ma'am.
Yes, Then ma'am. n plus 1th term will be given by replacing n by n plus 1. So you get un plus 1 is x raised to the power n plus 1 upon me 1 plus x raised to the power n plus 1. Now, compute limit n tending to infinity un plus 1 upon un. ये limit compute करो and tell me what limit are you getting. जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया है उसी तरीके से लिमिट कंप्यूट करो टेल मी व्हाट लिमिट आर यू गाइस गेटिंग. Have you guys computed the limit? मैम 1 आ रही है. ओके आपकी 1 आ रही है और किसी की मैं बना रही हूँ. सबकी 1 आ रही है लिमिट. यस और नो. Ma'am, 1 1 आ रही है. ओके हाँ मैम बनी है. अब आप सब देखना मिस्टेक कहाँ कर रहे हो आप. ठीक है. Ma'am, 0. Okay, 0. Any other limit that any other person is getting? Till now you have got limit 0 and 1. Any other limit that you guys getting? मैम x. You are getting x. Okay. मैम x स्क्वायर. x square. ठीक है. सब मैच करना कि लिमिट क्या आ रही है. ठीक है. Here this is your un plus 1. This is your un. To simplify it, we multiply numerator by the reciprocal of the denominator. So you get x की power n plus 1 upon 1 plus x की power n plus 1 into 1 plus x की power n upon xn. x की पावर्स देखो यहाँ पे x की पावर n plus 1 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में है x की पावर n. एक्सपोनेंट रूल लगाएंगे तो ये x की पावर n जो है हम ऊपर लेके आएंगे तो क्या बनेगा x की पावर n plus 1 minus n. Positive end and negative end will cancel out. This will remain. This will be x. This term will remain as it is, and the denominator will remain as it is. So you get limit n tending to infinity x into 1 plus x की power n upon 1 plus x की power n plus 1. Is this clear to everyone? यहाँ तक? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes, ma'am. Now tell me, do you know what will be the value of x? Is this fixed or it can take any value? मैम एनी वैल्यू कुछ भी हो. Any value. तो जिनकी x लिमिट आ रही है या जिनकी 1 आ रही है वो कैसे आ रही है? टेल मी. आप n टेंडिंग टू इंफिनिटी आप x की पावर n और x की पावर n प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी? देखो n टेंडिंग टू इंफिनिटी की जो हम लिमिट लगाएंगे वहीं लगाएंगे जहाँ पे n होगा.
यहाँ पे तो n नहीं है x में, तो इट विल रिमेन एज इट इज, 1 प्लस विल रिमेन एज इट इज इन द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। यहाँ पे हम देखेंगे कि x की पावर n की लिमिट क्या होगी एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और डिनोमिनेटर में हम देखेंगे x की पावर n प्लस 1 की लिमिट क्या होगी। यस और नो, ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस मैम। Yes, ma'am. नाउ टेल मी कि लिमिट क्या होनी चाहिए। मतलब आपकी लिमिट x होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? इट विल डिपेंड ऑन x और नो, एक्स x पे डिपेंड करेगी ना कि हम x क्या लेते हैं, Yes, उसके बाद ma'am. हमें पता लगा कि x की पावर n या x की पावर n प्लस 1 का बिहेवियर क्या होगा। ठीक है, उससे पहले जस्ट कंसीडर दिस सीरीज, गिवन सीरीज। हमने जो भी टेस्ट पढ़े हैं वो हमने पढ़े हैं पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए। पॉजिटिव टर्म सीरीज क्या होती है? जिसमें कुछ टर्म्स को छोड़ के उसके बाद सारी टर्म्स कैसी हों? पॉजिटिव। अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव लेती हूँ, लाइक -1, -½ और -3, -2, कुछ भी नेगेटिव वैल्यू, देन दिस फर्स्ट टर्म कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ, क्योंकि न्यूमरेटर तो नेगेटिव होगा, डिनोमिनेटर कैन बी 1 प्लस करके हो सकता है नेगेटिव आई या पॉजिटिव आई। सो दिस टर्म कैन बी बोथ नेगेटिव और पॉजिटिव। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये टर्म हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि स्क्वायर है, इवन पावर है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. थर्ड टर्म जो होगी यहाँ पे ऑड पावर है, इट कैन बी बोथ नेगेटिव और पॉजिटिव डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ x। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. नेक्स्ट टर्म विल बी पॉजिटिव। अब आपको ये पता लग गया कि जो इसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स, जो इवन प्लेस पे जो टर्म वैल्यू है वो तो हमेशा पॉजिटिव होगी, बट ऑड प्लेस पे या तो आपकी नेगेटिव हो सकती है या फिर पॉजिटिव हो सकती है। पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं, बट अगर नेगेटिव है तो हमें तो बहुत सारे नेगेटिव टर्म्स मिल सकते हैं सीरीज में। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. फिर तो हम ये टेस्ट अप्लाई कर ही नहीं सकते जो भी हम टेस्ट पढ़ रहे हैं। तो हम क्या कंडीशन प्लेस कर रहे हैं कि x हमारा नॉन नेगेटिव नंबर है, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 होगा तो ये हमारी सीरीज 0 बन जाएगी, तो कोई वैलिडिटी है ही नहीं चेक करने की कन्वर्जेंस। तो हम क्या कर रहे हैं, ताकि हम अपने टेस्ट अप्लाई कर सके, देयर इज अ कंडीशन दैट यू आर प्लेसिंग दैट x इज ग्रेटर देन 0। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये क्वेश्चन में लिखा होगा व्हाइल टेकिंग द स्क्रीनशॉट, मतलब पिक को आई थिंक ओमिट हो गया वो पार्ट। तो x की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी है। नाउ कंसीडर द केस 1 वेयर x लाई बिटवीन 0 to 1, okay, and we will try to find out what will be the limit of x की power n tending to infinity in this case। जब मैंने आपको ज्योमेट्रिक्स who is this? जब हमने ज्योमेट्रिक सीरीज का मैंने आपको प्रूफ कराया था, इन दैट केस जब हमारी r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में थी, देन हमने चेक किया था कि लिमिट ऑफ r n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 था। सिमिलरली उसी तरीके से हम अगर हमारी x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हम चेक कर सकते हैं। x को आप हाफ ले लीजिए, हाफ के लिए x की पावर n, दैट इज हाफ की पावर n, जो आपका सीक्वेंस बन रहा है उसको ऑब्जर्व कीजिए। पहली टर्म क्या होगी? हाफ, नेक्स्ट टर्म विल बी 1/4, नेक्स्ट टर्म विल बी 1/8। अगर आप n की बहुत बड़ी वैल्यू लोगे तो आप देखोगे 1/2 की पावर n विल बी क्लोज टू 0। सो 0 से 1 के बीच में अगर आप कोई भी वैल्यू लोगे तो हर किसी के लिए लिमिट ऑफ x n की पावर इंफिनिटी विल बी 0। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, मैम ma'am. लास्ट में क्या limit- कहा आपने? आप x की 0 से 1 के बीच में x की वैल्यू है तो आप x की कोई भी वैल्यू चूज कर लीजिए, 1/2, 1/3, 1/4 और 0.9। यस कुछ मैम, भी। वो Then 0 के आप क्लोज होती रहेगी। हाँ, जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी। सो यू कैन से लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ x की पावर n इज 0। यस मैम। तो अगर x की पावर n की लिमिट 0 है तो x की पावर n प्लस 1 की भी तो 0 होगी, एक पावर बढ़ा ही रहे हैं हम n टेंडिंग टू यस इंफिनिटी की। मैम। तो अब ये लिमिट आप कंप्यूट करिए इस केस के लिए, जहाँ पे n है वहीं पर हम लिमिट कंप्यूट करेंगे। इसकी लिमिट क्या होगी? 0। नीचे वाला जो x की पावर n प्लस 1 है उसकी भी लिमिट 0 है, तो व्हाट वी गेट? x इंटू 1 प्लस 0 अपॉन में 1 प्लस 0 विच इज x, एंड यू नो दैट दिस x इज लेस देन 1। अभी अब हम केस कंसिडर कर रहे हैं। सो योर सीरीज विल बी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बाय रेशियो टेस्ट।
लिमिट जो है वो 1 से छोटी है, convergent. So if your x lie between 0 to 1, then your series is convergent. Is this clear to everyone? Case 1. Yes, Yes. ma'am. Now consider case 2 where x is equal to 1. Now tell me what will be the series if x is equal to 1. Ma'am, same 1/2, 1/2. 1/2 and then 1/. Each of the term of the series will be equal to half. So what kind of series it will be? n into half. वो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम होगा, और n टेंडिंग टू इंफिनिटी अगर हम इसका करेंगे तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की लिमिट क्या आ रही है? Sn की लिमिट इंफिनिटी, वो फाइनाइट नहीं है, तो आपकी सीरीज क्या है? डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट? Divergence. Divergent. Divergent. That means if a value of x is 1, then your series will be divergent. Is this clear? Yes, ma'am. Now the last case where x is greater than 1. Okay, what is the necessary condition for the possibility of the convergence of a series? ये टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैंने आपसे नेसेसरी कंडीशन डिस्कस करी थी. अगर nth टर्म की लिमिट नॉन जीरो होती है तो आपकी सीरीज कैसी होती है? Divergence. और अगर वो जीरो है तो पॉसिबिलिटी मैम है कि वो possibility होती है. कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों हो. तो हम Yes, क्या ma'am. करते हैं, अगर x हमारा ग्रेटर देन 1 है तो इन दैट केस हम पहले लिमिट ऑफ un nth टर्म की लिमिट कंप्यूट करते हैं. nth टर्म सीरीज की क्या थी? x की पावर n अपॉन 1 प्लस x की पावर n. x की पावर n से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया. इन द न्यूमरेटर यू विल गेट 1, इन द डिनोमिनेटर यू विल गेट 1 अपॉन x की पावर n प्लस 1. This 1 upon x की power n can be written as 1 by x की power n, 1 by x whole raised to the power n. Yes or no? Yes, ma'am. या फिर अगर वो भी समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नो हाफ ही ले लीजिए. 1 by x की पावर whole raised to the power n. Now x is greater than 1, तो 1 by x will be less than 1. Yes or no? जो हमारा केस है x ग्रेटर देन 1 है तो 1 by x Yes, क्या ma'am. होगा? लेस देन 1 होगा. दैट मींस 1 by x लेस देन 1 है. उस दैट केस में 1 by x रेज टू द पावर n की लिमिट क्या होगी? 0. 0. होगी या नहीं होगी? अभी ऊपर हमने यही तो किया था. अगर x लेस देन 1 है तो लिमिट ऑफ x n 0 है. अगर 1 by x हमारा 1 से छोटा है तो 1 by x रेज टू द पावर n की लिमिट में तो 0 हो जाएगी. x की जगह सिर्फ 1 by x से तो पुट कर रहे हैं हम. That means limit n tending to infinity of this expression will be 1 upon 0 plus 1, which is 1, not equal to 0. nth term की लिमिट नॉन जीरो है, इसका मतलब ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी फॉर x greater than 1. So you can conclude that your limit, your series is convergent for x lying between 0 to 1 and is divergent for x greater than equal to 1. Is this question clear to everyone? Yes, ma'am. Just go Yes, through ma'am. it once again. किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ. This is an important question based on this ratio test. क्योंकि इसमें आपको different cases form करने पड़ रहे हैं. The limit part should be clear to everyone. Yes. Any doubt? Shall I start with the next question? Yes, ma'am.
Now consider the series summation of n log x. If you expand the series, this will be like 1 raised to the power log x plus 2 raised to the power log x plus 3 raised to the power log x and so on. So the nth term of this series is n log x. Okay? This is n log x. Using the exponent rule, a raised to the power n equal to 1 upon a raised to the power minus n. अगर मैं इस पावर को डिनोमिनेटर में लेके जाना चाहती हूँ तो इट विल बी लाइक 1 upon n minus n raised to the power minus log x. Is this clear to everyone? This step? Yes, ma'am. नेगेटिव पावर Yes, करने ma'am. के लिए हम डिनोमिनेटर में ले गए. नाउ यूजिंग द पावर रूल ऑफ logarithm, I can take this minus into inside the logarithm as log x raised to the power minus 1. Yes or no? X raised to the power minus 1 क्या होगा? 1 by log x. So this n raised to the power log x can be written as 1 upon n raised to the power log of 1 by x. Yes or no? हाँ जी मैम. Now, can you relate? This is nothing but a p series. Instead of p, you have log of 1 by x. Yes? Yes, ma'am. अब मुझे बताओ ये सीरीज कन्वर्ज और डाइवर्ज कब करेगी? x की वैल्यू बताओ मुझे. आपको पता है p सीरीज कब कन्वर्ज करती है? व्हेन p लेस देन 1, p ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्ज करती है फॉर p लेस देन इक्वल टू 1. और p की जगह आप ये पुट कर दो और x के लिए सॉल्व कर लो इनइक्वालिटीज को. So tell me when this series will converge or diverge. मैम जब log 1 by x ग्रेटर देन होगा 1 से तो कन्वर्ज. When x is चेक करो ध्यान से. लॉग हटाने के लिए हम एक्सपोनेंशियल लेंगे ना ऑन द अदर साइड. जब 1 by x ग्रेटर होगा मतलब e से तो वो फिर कन्वर्ज करेगी और हाँ, जब तो फिर उसके इक्वल टू होगा तो वो लेस देन इक्वल डाइवर्ज टू. करेगी. हाँ, तो पर हमें तो x चाहिए तो हम क्या करेंगे? e को शिफ्ट कर देंगे. सिर्फ x के हम देखेंगे कि x कब बड़ा होना चाहिए किसी नंबर से या कब छोटा होना चाहिए. See, your p series converges when p is greater than 1 and p क्या है आपका? log of 1 by x. That means this series will converge when log of 1 by x is greater than 1. log को हटाने के लिए हम right side पे e raised to the power 1 कर देंगे which is e. So this will converge when 1 by x is greater than e. e को डिनोमिनेटर में लाया और x को हमने न्यूमरेटर अदर साइड न्यूमरेटर में रखा है. So when 1 by e is greater than x, that is for values of x less than 1 by e, the series is convergent. Divergent कब होगी? जब p less than equal to 1 होगा. p क्या है आपका यहाँ पे? log of 1 by x. log हटाने के लिए अदर साइड पे e लिखा, that is then x को शिफ्ट किया है. Then you get that for all values of x greater than equal to 1 by e, the series is divergent. Is this question clear to everyone? Yes ma'am. Yes, It's a ma'am. very simple question, just an application of your harmonic series. The next question that you are going to do is this. Here you have to test the convergence of the series. Just go through it and tell me, is the nth term that I have written over here, is this correct or not? और सबको समझ आई nth टर्म ऑब्टेन कैसी होगी? पैटर्न ऑब्जर्व करो ध्यान से.
You यही can see होगी मैम that nth। मैम यही होगी। यही होगी। आप ध्यान से देखो, ये nth टर्म होने के लिए we will have to omit this one वन from भी this plus series। वन को हमें omit करना पड़ेगा, और हमें पता है हम omit कर सकते हैं क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को रिमूव करते हैं तो बिहेवियर चेंज नहीं होता। सो आई एम इग्नोरिंग दिस वन एंड स्टार्टिंग with this term as my first term. So alpha plus 1 upon beta plus 1. Second term is alpha plus 1 upon beta plus 1 into 2 alpha plus 1 upon 2 beta plus 1. ध्यान से देखो, जो भी प्रीवियस टर्म के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उनको एज इट इज रखा है, और साथ में फिर हमने एक एडिशन किया है डिपेंडिंग अपॉन द टर्म नंबर। जैसे थर्ड वाले में सेकेंड टर्म के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज, एंड आफ्टर दैट थर्ड टर्म के लिए 3 अल्फा प्लस 1 एंड 3 बीटा प्लस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने प्लेस किया है। तो un विल बी दिस। ये क्लियर हुआ सबको? Here you yes are ma'am given that alpha and beta are positive numbers या greater than 0. n plus 1th टर्म क्या होगी? यहाँ तक तो हमें सारा एक्सप्रेशन लिखना ही पड़ेगा n तक, और फिर साथ में हम अटैच कर देंगे n plus 1 into alpha plus 1, डिनोमिनेटर में n plus 1 into beta plus 1. Yes or no, this will be your nth term, this whole yes ma'am expression. अब रेशियो टेस्ट लगाने के लिए यू विल कॉम्प्यूट लिमिट un प्लस 1 अपॉन un एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी। un प्लस 1 n प्लस 1th टर्म को प्लेस किया, nth टर्म को प्लेस किया। ध्यान से देखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर nth टर्म का और n प्लस 1th टर्म में कुछ टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी। यू विल बी लेफ्ट विद लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। यहाँ तक सबको क्लियर है? ये देखो, Yes, ये पूरा पोर्शन न्यूमरेटर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर ये वाला Yes, पूरा ma'am. पोर्शन नीचे से। नाउ n प्लस 1 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करो, यू विल गेट इन द न्यूमरेटर अल्फा प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इन द डिनोमिनेटर यू विल गेट बीटा प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लोगे, दिस होल एक्सप्रेशन विल कन्वर्ज टू 0। सो यू विल गेट अल्फा प्लस 0 अपॉन बीटा प्लस 0 विच इज अल्फा बाय बीटा। अब अल्फा और बीटा पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, बट क्या नंबर है हमें नहीं पता। तो हमें पता है पर रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर ये लिमिट अल्फा बाय बीटा लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट है। दैट मीन्स ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी? जब अल्फा की वैल्यू लेस देन बीटा हो, और डाइवर्जेंट कब होगी? जब अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन बीटा हो। दैट मीन्स अगर मैं बीटा को 2 ले लेती हूँ और अल्फा को 1 ले लेती हूँ तो ये सीरीज क्या हो जाएगी इस केस में? कन्वर्जेंट। अगर अल्फा को 2 बीटा को 1 देन इस केस में डाइवर्जेंट। तो हमने कौन सा केस कंसीडर नहीं किया अभी जहाँ पे लिमिट क्या हो? ma'am, one. 1 के इक्वल। 1 हो, One और के जब 1 होगा तब तो हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा। वी कैन कंक्लूड कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। सो सी, अगर अल्फा और बीटा 1 हो जाते हैं देन अल्फा इज इक्वल टू बीटा। नाउ ऑब्जर्व द सीरीज, अल्फा और बीटा इक्वल है, ये एक्सप्रेशन सेम 1। These two expression will be same 1. Each of the term of the series will be equal to 1 1 in the case where alpha is equal to beta। और अगर सारी टर्म सेम होगी तो सीरीज क्या है? डाइवर्जेंट। तो हम केसेस को कंबाइन कर देते हैं। कन्वर्जेंट कब है? अल्फा लेस देन बीटा में, और डाइवर्जेंट अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा। ओके, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? yes ma'am yes ma'am This we are done with ratio test. Next we will discuss integral test. Before discussing it, I am sharing a rejoining link. Rejoin कर लो, उसके बाद हाँ से start करते हैं। Okay, and the CR please check the attendance. Screenshot ले लिया आपने? Who is the CR? मैम ले रही हूँ एक। Okay.
Okay, so I'm ending the class and sharing the rejoining link. Okay. Next is integral test. This integral test is again for the positive term series. इंटीग्रल टेस्ट में अप्लाई करने से पहले हम एक फंक्शन फॉर्म करते हैं ऑफ अ वेरिएबल x एंड हाउ यू विल फॉर्म दिस फंक्शन इज बाय रिप्लेसिंग n बाय x इन द nth टर्म ऑफ योर गिवन सीरीज. सपोज जैसे आपको ये सीरीज गिवन है समेशन ऑफ n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 वेयर n गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी. तो इस सीरीज की nth टर्म क्या है n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1. सो इन प्लेस ऑफ n यू पुट x.
the function that will result after replacing n by x will be x upon x square plus 1, and we denoted this by f of x. Is this clear how we obtain the function fx? Yes, ma'am. Now the condition is, ये जो आपका फंक्शन fx है ये पॉजिटिव होना चाहिए. That means जो भी वैल्यूज ये ऑब्टेन करेगा दे शुड बी पॉजिटिव, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए एंड मोनोटोनिक. मोनोटोनिक का मतलब या तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा. इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होगी. डिक्रीजिंग का मतलब है जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होगी फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होगी. जो भी फंक्शन है उसकी कुछ वैल्यूज लेकर आप प्लॉट करके आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि फंक्शन पॉजिटिव, कॉन्टिन्यूस, मोनोटोनिक है या नहीं. तो कंडीशन क्या थी कि फंक्शन पॉजिटिव, कॉन्टिन्यूस, मोनोटोनिक होना चाहिए. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू एन. देन जो आपकी सीरीज है वो कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगी इन द सेम वे कि आपका जो कॉरस्पॉन्डिंग इंटीग्रल है वो कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है. अगर आपका इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है तो सीरीज भी कन्वर्ज कर रही है, अगर डाइवर्ज कर रहा है तो सीरीज भी डाइवर्ज कर रही है. अब इंटीग्रल कैसे बनेगा? फंक्शन आपने फॉर्म कर लिया, यू हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. यहाँ पे सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 टू इंफिनिटी. तो लिमिट क्या होगी इंटीग्रेशन की? 1 से इंफिनिटी तक. अब ये इंटीग्रल कन्वर्ज कब करता है? जब इंटीग्रल को जब आप फाइंड आउट करोगे इसकी जो वैल्यू है अगर फाइनाइट नंबर है तो इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है. अगर इंटीग्रल की वैल्यू इनफाइनाइट या नेगेटिव इंफिनिटी है तो इंटीग्रल डाइवर्ज कर रहा है. What is integral test? Is that clear to everyone? Condition and the Repeat करना. कंडीशन समझ आई कि फंक्शन हमारा पॉजिटिव, कॉन्टिन्यूस Yes. एंड मोनोटोनिक होना चाहिए. उसके बाद हमारा अगर ये इंटीग्रल हम कैसे फॉर्म करेंगे? इंटीग्रेट करना है हमारा जो भी फंक्शन है उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सीरीज स्टार्ट है 1 से इंफिनिटी तो इंटीग्रल 1 टू इंफिनिटी. मोस्टली सीरीज हमारी 1 से स्टार्ट है तो हमने जनरलाइज्ड अभी 1 से इंफिनिटी ही लिखा है. अगर 2 से स्टार्ट है तो यू विल स्टार्ट इट फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी. ओके. अब इस इंटीग्रल की वैल्यू अगर फाइनाइट है तो वी से दैट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड देन योर सीरीज, ओरिजिनल सीरीज विल आल्सो बी कन्वर्जेंट. अगर इस इंटीग्रल की वैल्यू इनफाइनाइट या नेगेटिव इंफिनिटी है देन दिस इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट एंड हेंस योर सीरीज विल आल्सो बी डाइवर्जेंट. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ma'am. अभी तक आपने जब भी इंटीग्रेशन किया है या तो आपने इनडेफिनेट इंटीग्रल किया है या फिर डेफिनेट इंटीग्रल किया है. डेफिनेट इंटीग्रल में भी आपने जो यहाँ पे लिमिट्स ली हैं, लिमिट्स जो होती है इंटीग्रेशन की वो आपने कांस्टेंट ली है एंड दे आर फाइनाइट नंबर. बट हियर योर वन ऑफ द लिमिट इज एन इनफाइनाइट नंबर. सो दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल्स इन विच वन ऑफ द लिमिट, एट लीस्ट वन ऑफ द लिमिट आपकी इंफिनिटी या नेगेटिव इंफिनिटी होती है उसको हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोलते हैं. ओके, इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोलते हैं. और हमेशा कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की इम्प्रॉपर इंटीग्रल की ही बात की जाती है. ठीक है. अब हम ये इंटीग्रल कैसे कंप्यूट करेंगे? जहाँ पे भी इंफिनिटी है उसकी जगह आप एक फिक्स नंबर प्लेस कर देना, लाइक आई हैव प्लेस्ड m ओवर हियर. एंड आउटसाइड द इंटीग्रल राइट लिमिट m टेंडिंग टू इंफिनिटी. जो भी आपने नंबर प्लेस किया है m उसी की हम लिमिट ले लेंगे m टेंडिंग टू इंफिनिटी. अगर आपने यहाँ पे b लिखा होता तो लिमिट विल बी b टेंडिंग टू इंफिनिटी. इज दिस इंटीग्रल पार्ट क्लियर टू एवरीवन? Yes. Now we will evaluate limit 1 to m of x upon x square dx. पहले इंटीग्रल कंप्यूट करेंगे फिर हम लिमिट लेंगे m टेंडिंग टू इंफिनिटी. x square plus 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x. To place 2 over here, I have divided the whole expression by half. 2x upon x square plus 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? log of x square plus 1. half outside. 1 to m हमारी लिमिट है. m प्लेस करेंगे x की जगह तो you will get half m square log of m square plus 1. 1 पुट किया you will get minus half log of 1 plus 1. log of 1 plus 1 will be 2. यहाँ तक क्लियर है? मैम हमने इसमें फाइनाइट नंबर ले लिया है, मतलब इंफिनिटी की जगह. हाँ, और बाहर हमने लिख दिया ना लिमिट m टेंडिंग टू इंफिनिटी. अब इनफाइनाइट को आप एकदम से कैसे पुट करोगे? आप पुट करके निकाल भी सकते हो बट द लॉजिकल वे इज टू डू दिस.
कभी भी इनफाइनाइट या नेगेटिव इन्फिनिटी होगा वहां पे आप क्या करना है, कांस्टेंट प्लेस कर देना और आउटसाइड में लिमिट ले लेना दैट कांस्टेंट टेंडिंग टू, जिससे भी आपको रिप्लेस किया। अगर आपने इन्फिनिटी को रिप्लेस किया तो लिमिट इन्फिनिटी पे जाएगी, नेगेटिव इन्फिनिटी से रिप्लेस किया तो नेगेटिव इन्फिनिटी जाएगी। ठीक है, ओके मैम, यस। सिंपली फिर जैसे आप डेफिनेट इंटीग्रल इवैल्यूएट करते हो, लिमिट्स को पुट करते हो, आपने वो फाइंड आउट कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद हम लिमिट इवैल्यूएट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो यू हैव log 2 है, हाफ हम दोनों टर्म में से कॉमन ले सकते हैं, हाफ कॉमन लिया, इनसाइड यू विल बी लेफ्ट विद log m square plus 1 minus log of 2. Using the logarithm property, log a minus log b is equal to log a by b. This can be written as log m square plus 1 upon 2. डायरेक्टली लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। तो कंबाइन करने के बाद यू विल गेट हाफ log of m square plus 1 upon 2. नाउ अब m अगर हम इन्फिनिटी पे टेंड करेगा, m स्क्वायर विल ऑल्सो टेंड टू इन्फिनिटी, कुछ उसमें 1 ऐड करेंगे या 2 से डिवाइड करेंगे तब भी वो इन्फिनिटी होगा। और अगर हम log को इवैल्यूएट करें तो वेरी लार्ज नंबर, द वैल्यू ऑफ log विल ऑल्सो बी अ वेरी लार्ज नंबर। लॉगरिथम फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। सो दिस लिमिट इज कमिंग आउट टू बी इन्फिनिटी। एक फाइनाइट नंबर नहीं है, इसका मतलब आपका जो ये इंटीग्रल है वो डाइवर्ज कर रहा है। अगर इंटीग्रल डाइवर्ज करे तो इसका मतलब जो कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज है जहां से हमने ये फंक्शन फॉर्म किया वो भी क्या है, डाइवर्जेंट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। मैम एक बार सेकंड स्टेप बता दो, ये m कहाँ से आया? ये 1/2 ln 2x plus 1 वाली m कहाँ से आया? ये m लिमिट पुट किए ना, अपर लिमिट m है ना, तो x की जगह m पुट करेंगे तो विल बी m स्क्वायर प्लस 1, लोअर लिमिट 1 है, 1 पुट किए, 1 स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1, जैसे आप लिमिट पुट करते हो डेफिनेटली। मैम इसके ऊपर वाले में m कहाँ से आया? यहाँ पे ये सेकंड स्टेप। यस मैम, यहीं पे। यस मैम। ये दिस इज नथिंग, ये इंटीग्रल लिखा है, उसके बाद हम इवैल्यूएट कर रहे हैं 1 से m। ये नोटेशन है, मुझे नहीं पता आप लोग कौन सी नोटेशन से फेमिलियर हो। ओके, हम लिखते नहीं लिमिट, जो भी इंटीग्रल होगा लोअर लिमिट 1 पे इवैल्यूएटेड है, अपर लिमिट m पे इवैल्यूएट करेंगे। ओके 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 आई मैम। जस्ट डोंट रिमेम्बर कि हम 12th क्लास में कौन सी नोटेशन यूज करते थे डेफिनेट इंटीग्रल में। ठीक है, ये स्लैश का मतलब है कि नीचे मैं लोअर लिमिट लिख रही हूँ, ऊपर अपर लिमिट, जिस पे हम इस फंक्शन को इवैल्यूएट करेंगे। ओके ओके मैम, ओके। The next question is summation 1 by n log n 2 to infinity। फंक्शन फॉर्म करेंगे तो क्या होगा, 1 upon x log x। यहाँ पे सीरीज 2 से स्टार्ट है, सो इंटीग्रल विल बी 2 to infinity। सेम उसी तरीके से इन्फिनिटी की जगह यहाँ पे स्मॉल m लिखा है, चाहे आप कैपिटल M लिख लेना, इंटीग्रल इवैल्यूएट करना। और ये जो फंक्शन है ये हमारा पॉजिटिव कॉन्टिन्यूस है 2 से इंफिनिटी तक, और मोनोटोनिक भी है। ठीक है, आप वैल्यूज पुट करके आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि फंक्शन हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, इंटीग्रेट तो कर लोगे ना? यस मैम, एग्जाम में हमें इसे कंटिन्यूअस भी प्रूव करके दिखाना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, आपको प्रूफ वगैरह नहीं करना। अगर प्रूफ करोगे तो वो तो एक अलग ही पार्ट पे चला जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आपको सिर्फ अभी सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पूछी होगी क्वेश्चन में, तो आपको सिर्फ वहीं तक स्टक करना है। बट अप्लाई करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि ये कंडीशन फंक्शन अगर हम जो फॉर्म करें वो सेटिस्फाई कर रहा हो कंडीशंस। टेस्ट अप्लाई तभी होगा। ओके मैम। तो जब आप इसके अगेन लिमिट कंप्यूट करोगे, इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ये अगेन इन्फिनिटी आएगा इस इंटीग्रल की भी वैल्यू, तो इसका मतलब ये इंटीग्रल डाइवर्जेंट है, देयरफॉर दिस सीरीज विल बी कन्वर्जेंट। आई एम लीविंग द इंटीग्रेशन पार्ट एंड दिस लिमिट पार्ट टू यू गाइस। आई थिंक इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से आता होगा। ओके, कर लोगे ना आप लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। From the next this rabies test, we will start from the next class. Okay, so till now I have covered 3 tests: comparison test, ratio test and integral test. Okay, किसी को कोई डाउट? नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. Ending the class. ये बुक शेयर कर देना। Okay. PDF